آج کل جو اس وقت بڑا برننگ ٹاپک چل رہا ہے پورے ملک میں وہ ہے ٹرانسجنڈر کا قانون۔ تھوڑا مشکل سبجیکٹ ہے اور میرا خیال ہے جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں شاید آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت بھی پیش آئے، لیکن میں نے اس پہ بہرحال اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ یہ قانون جب 2018 میں پاس ہوا اسمبلی سے، میں نے اس وقت بھی اس پہ اظہار خیال کیا تھا، اور ابھی نئے سرے سے ساری کی ساری تفصیل میں نے پڑھی ہے اس قانون کی۔ تو جو میرا تبصرہ ہے، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل الطافیہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ وہ قانون دان کی حیثیت سے نہیں ہے، میں قانون نہیں پڑھا ہوا اس لیے مجھے قانون کا تجربہ نہیں ہے۔ پھر اس میں کچھ ڈاکٹری کی باتیں ہیں، تو میں چونکہ ڈاکٹر بھی نہیں ہوں اس لیے مجھے ڈاکٹری کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ میں بالکل ایک عام لے مین کی طرح جو انگریزی حکومت پاکستان نے جاری کی ہے اس انگریزی کو اردو میں سمجھ کے جو میرے سمجھ آیا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ باقی یہ کیس اس وقت وفاقی شرعی عدالت میں موجود ہے، پرسوں اس پہ پیشی تھی، جو یہ کیس کرنے والے ہیں وہ بھی پیش ہوئے، اور جنہوں نے یہ قانون بنایا اچھا ہوا کہ وہ بھی وہاں پہ پیش ہوئے، تو وہاں پہ بحث ہوئی، 5 مہینے بعد تاریخ لگی تھی۔ امید یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت اس پہ بڑی جلدی اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ تو اس لیے جو میرا تبصرہ ہے یہ بالکل ایک لے مین کا تبصرہ ہے، یہ کسی قانون دان یا ڈاکٹر یا اس ماہر کی حیثیت سے تبصرہ نہیں ہے۔ یہ جو قانون ہے جس کو ٹرانسجنڈر لا کا نام دیا گیا ہے، اس میں جو عام اصطلاح آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو ہمارے لیے اس میں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ہماری زبان میں، وہ ہم کہتے ہیں خسروں کا قانون۔ خسروں کے لیے جن کو خنسا یا مخنث وغیرہ وغیرہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ہماری زبان میں چونکہ عام طور پر خواجہ سرا بھی کہتے ہیں، ان کا قانون۔ اب جو مخنث ہے، جن کو آپ اپنی زبان میں خسرا کہتے ہیں، یہ کوئی الگ سے جنس نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو ڈاکٹر لوگ بات کرتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے اور یہ پیدائشی بیماری ہے۔ اس بیماری کا جو نام ہے وہ ہے کلائن-فیلٹر سنڈروم کہتے ہیں بیماری کو۔ تو یہ ایک بیماری ہے بالکل اس طرح سے جس طرح ایک بچہ نابینا پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ وہ گونگا اور بہرا پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ پاگل پیدا ہوتا ہے، جس طرح وہ بیماریاں بالکل اس طرح سے یہ بھی ایک بیماری ہے۔ عام طور پہ ان بیماریوں کا بھی کوئی علاج نہیں ہے، اسی طرح سے ان بیماریوں کا بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے میوسس، ایک مائٹوسس ہوتی ہے، ایک میوسس ہوتی ہے۔ تو جو میوسس ہے اس میں مرد کے کروموسوم اور عورت کے کروموسوم یہ آپس میں ملتے ہیں۔ مرد کے جو کروموسوم ہے اس کو ایکس اور وائی کہتے ہیں، اور عورت کے جو کروموسوم ہوتے ہیں ان کو ایکس ایکس کہتے ہیں۔ اگر مرد کا ایکس کروموسوم عورت کے ایکس کروموسوم سے ملے گا تو وہ ایکس اور ایکس وہ عورت بن جائے گی۔ اگر مرد کا وائی کروموسوم عورت کے ایکس کے ساتھ ملے گا تو وہ ایکس وائی کے ساتھ مرد بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی ایب نارمیلٹی ہو جائے، ایسا کوئی اندر پرابلم ہو جائے کہ وہ ایکس اور وائی ملنے کی بجائے
वो एक्स एक्स वाई 3 मिल जाएं 2 की बजाय, तो उससे फिर ये मुखन्नस पैदा होते हैं। तो ये एक एबनॉर्मेलिटी है जो मैं बिल्कुल सादा सी ज़ुबान में, जो आपकी तरह मैं भी लेमैन हूँ, जिस तरह मैंने समझा मैंने आपके सामने उस तरह बयान कर दिया। अब ये बीमारी हज़ारों लोगों में से किसी एक के साथ होती है, ऐसा नहीं होता कि हर कोई तीसरा चौथा बंदा इसमें बीमार हो जाए। ये ट्रांसजेंडर का कानून समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ इस्तिलाहात हैं, वो समझना ज़रूरी है। मैं उनमें से चंद एक आपके सामने रखता हूँ ताकि जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं इस कानून में, उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि इसके लिए जो इस्तिलाहात लोग बोलते हैं वो क्या है। इनमें सबसे पहली इस्तिलाह है सिस जेंडर। सिस जेंडर क्या होता है? ये वो अफराद हैं जो पैदाइशी तौर पर मुकम्मल मर्द या मुकम्मल औरत होते हैं। जिस तरह आप हैं, मैं हूँ, हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बीवियाँ हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, वगैरह वगैरह। हम मुकम्मल मर्द हैं और औरतें मुकम्मल औरतें हैं। तो जो लोग मुकम्मल मर्द हैं और मुकम्मल औरतें हैं उन्हें हम कहते हैं सिस जेंडर। उसके बाद दूसरी जो इस्तिलाह है, दूसरी जो टर्म है वो है इंटरसेक्स, या इसके लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है हर्माफ्रोडाइट। अब ये जो हर्माफ्रोडाइट या इंटरसेक्स है, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पैदाइशी तौर पर ऐसी एबनॉर्मेलिटी का या ऐसी खराबी का शिकार होते हैं जिसकी वजह से न वो औरत होते हैं न वो मर्द होते हैं। तो वो एक दरमियान की जिनस या दरमियान की एक सिनफ वो बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट या इंटरसेक्स, या जिसे मैंने आपको बताया मुखन्नस या खुसरा या खाजासरा वगैरह वगैरह, कोई भी लफ्ज़ आप इनके लिए इस्तेमाल कर लें। इसमें इस्लाम में बड़ी तफसील से इसके अहकाम मौजूद हैं। उसमें आगे इंटरसेक्स के लिए या हर्माफ्रोडाइट के लिए उन्होंने इसकी 2 किस्में बयान की हैं। हमारे उलमा ने इसकी 2 किस्में बयान की हैं। एक खंसा गैर मुश्किल और दूसरा खंसा मुश्किल। मुश्किल से क्या मुराद? जिसमें इश्काल हो, इबहाम हो, वो चीज़ जो वाज़े ना हो, उसको हम कहते हैं मुश्किल। अब गैर मुश्किल से क्या मुराद है? कि वो वाला मर्द या औरत जिसमें ये वाली अलामात बिल्कुल वाज़े पाई जाएं, उनमें कोई इश्काल ना हो, कोई इबहाम ना हो, उसको हम कहते हैं कि ये खंसा मुज़क्कर है या ये खंसा मुअन्नस है। मसलन एक बच्चा पैदा हुआ, वो है तो खंसा है, तो वो खाजासरा, लेकिन उसके जिस्म के आज़ा या उसके जिस्म की बनावट ऐसी है कि वो उसे मर्द लगता है। अब उसको हम, अब ये मुश्किल नहीं, इसमें अशकाल कोई नहीं है, वो चूंकि मर्दों की तरह नजर आता है, उसके आज़ा मर्दों की तरह है, इसलिए हम उसको मर्दों में शामिल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और वो है खाजासरा लेकिन उसके आज़ा औरतों की तरह के हैं, तो उसको हम औरतों में शामिल करेंगे। अब खंसा मुश्किल जो है ये वो जिसमें इश्काल हो। इश्काल से क्या मुराद? कि वो है तो खंसा लेकिन उसके आज़ा की बनावट से ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये मर्द है या औरत है, तो ये खंसा मुश्किल हो गया जिसमें इश्काल है। अब इसके लिए शरीयत ने बड़े वाज़े कानून दिए हुए हैं, बहुत वाज़े कानून दिए हुए हैं कि जो खंसा गैर मुश्किल है, मतलब जिसके आज़ा वाज़े हैं, अगर वो मर्दों के आज़ा वाला है तो उसको मर्दों में लिया जाएगा। मसलन वरासत की तकसीम है तो वरासत की तकसीम में उसको मर्दों की तरह हिस्सा मिलेगा। अगर उसके आज़ा औरतों की तरह के हैं तो उसको वरासत में औरतों की तरह का हिस्सा मिलेगा। बाकी भी जो
कवानीन औरतों मर्दों वाले वो उनके ऊपर लागू होंगे। तो इसके ऊपर दीन ने बड़ी तफसील से बहस की हुई है। आगे आइए तीसरी टर्म। पहले मैंने 2 टर्म्स आपको हर्माफ्रोडाइट, इंटरसेक्स और सिसजेंडर ये बताएं। अब मैं तीसरी आपको शक्ल बताने लगा हूं, वो है जेंडर डायस्फोरिया। जेंडर डायस्फोरिया की चीज क्या चीज है? एक ऐसा बंदा जो पैदाइशी तौर पर मुकम्मल मर्द था या मुकम्मल औरत था, पैदा होते हुए उसमें कोई इश्काल, कोई इबहाम नहीं था, वो पैदा होते हुए मुकम्मल तौर पे मर्द था या मुकम्मल तौर पे औरत। अब पैदा होने के बाद उसमें अपनी नफ्सियाती वजूहात की बिना पे या मुख्तलिफ किस्म की टेंशन्स की वजह से या मुआशरती दबाव की वजह से या उसके अपने ख्यालात की वजह से वो अपने जेंडर से, अपनी जिनस से खुश नहीं है। मतलब वो ये चाहता है कि जी मैं मर्द के तौर पे मुझे नहीं पैदा होना चाहिए था, मुझे औरत के तौर पे पैदा होना चाहिए था। अब उसकी पसंद और नापसंद बीच में आ गई। तो ऐसे लोग, इसकी वजह से उनके हार्मोन्स में चेंज आ जाती है और वो चेंज आने की वजह से जो उनमें शक्ल बनती है उसको हम कहते हैं जेंडर डायस्फोरिया। अब आ जाइए चौथी टर्म। चौथी टर्म है ट्रांसजेंडर, जो मेरा आज का टॉपिक है कि जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर ये क्या चीज है? ये मुकम्मल मर्द हैं और मुकम्मल औरतें हैं। जिस तरह आप और मैं हैं, बिल्कुल इस तरह से मुकम्मल मर्द हैं, मुकम्मल औरतें हैं। इनके पैदा होते हुए इनके अंदर किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है कि ये मर्द हैं या औरतें हैं। लेकिन ये अपने मर्द होने पे या अपने औरत होने पे खुश नहीं है। इनका ख्याल है कि हमें मर्द की बजाय औरत होना चाहिए था, या वो औरत है तो उसका ख्याल है कि मुझे मर्द होना चाहिए था। अब वो क्या करते हैं कि जो मर्द हैं इस तरह के, वो औरतों वाली आदतें, औरतों की तरह बाल रखने, औरतों की तरह कपड़े पहनने, औरतों की तरह चलना, औरतों की तरह बातें करना, बिल्कुल इसी तरह जो इनकी औरतें हैं वो अपने यहाँ इसी तरह मर्दों वाला लिबास, मर्दों वाले बाल, मर्दों वाली शक्लें, मर्दों की तरह बोलना चालना, वो सारी की सारी आदतें उसकी अपनाते हैं। और सिर्फ यहाँ तक नहीं टिकते, बाज़ औक़ात वो क्या करते हैं, वो जाके डॉक्टर से हार्मोन्स लेके अपनी जिनस बदलने की कोशिश करते हैं और वो अपनी जिनस बदल भी लेते हैं और वो अपने ऑपरेशन तक करवा लेते हैं और अपनी जिनस बदल लेते हैं। इन लोगों को कहते हैं ट्रांसजेंडर। इसमें एक समझने वाली बात है, वो जरा आप समझ लीजिए कि ट्रांसजेंडर जो है ये मुकम्मल मर्द या औरत हैं। इनके मर्द होने में या औरत होने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। वो खुद को अपने ज़हन में ये समझते हैं कि हमें औरत समझती है कि मुझे मर्द होना चाहिए था, तो वो मर्द बनने की पूरी कोशिश करती है। मर्द जो है उसका ख्याल है कि मुझे औरत होना चाहिए था, वो औरत बनने की कोशिश करती है। अब इन लोगों को हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर। अब जो मर्द है वो मर्द है, जो औरत है वो औरत है। इनके आगे फिर 2 किस्में हैं। वो 2 किस्में कौन सी हैं? एक को हम कहते हैं बाइनरी ट्रांसजेंडर और दूसरे को कहते हैं नॉन बाइनरी ट्रांसजेंडर। जो बाइनरी ट्रांसजेंडर हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे मर्द जो औरत बन गए और जो औरतें थी वो मर्द बन गए। अब ये ज़हन में रखिए, ये लोग मुखन्नस जो खुसरे हैं ये वो नहीं है, ये ज़हन में रहे, क्योंकि वो तो पैदाइशी खुसरा था। ये लोग ट्रांसजेंडर हैं जो बाद में अपनी जिनस बदलने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं बदलते तो वो औरत की तरह रहना शुरू कर देते हैं,
अगर वो औरत है तो वो मर्द बन नहीं सकती, लेकिन वो मर्दों की तरह रहना शुरू कर देती। ये चीज ज़हन में रहे। तो वो मर्द जो औरत हो गए, जो औरतें हैं वो मर्द हो गए, इनको हम कहते हैं बाइनरी ट्रांसजेंडर। और दूसरा है नॉन बाइनरी ट्रांसजेंडर, वो ट्रांसजेंडर जो अपने मर्द से औरत होने का या औरत से मर्द होने का फैसला नहीं कर पाए। उनका आज दिल कर रहा है एक मर्द का कि मैं औरत बन जाऊं, उसके दिमाग में कुछ अरसा ये बात बैठी रही और उसने मर्द बनने की कोशिश, मर्द था उसने औरत बनने की कोशिश शुरू कर दी। अब फिर उसका ख्याल आया कि नहीं यार मर्द ही रहना चाहिए, उसने अपना फैसला तब्दील किया, वो दोबारा अपना मर्द हो गया। तो ये दोनों के दरमियान में कभी वो मर्द हो गया, कभी वो औरत हो गई, इसको कहते हैं नॉन बाइनरी। ऐसे लोगों के ये नजरिए ये वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। कभी उनका नजरिया कुछ हो गया, कभी उसका नजरिया कुछ हो गया, उनका नजरिया कभी एक नहीं रहता। अब इस जगह पे एक बड़ी अहम बात वो बताने वाली है कि ये जो नॉन बाइनरीज हैं ये क्या करते हैं, ये कभी अपनी जिनस मसलन मर्द है, वो औरत बनने की कोशिश में, तो औरतों वाले बाल, औरतों वाले कपड़े, औरतों वाली आदतें, औरतों के मतलब सारे के सारा उन्होंने वो वाला हिसाब किताब बना लिया। अब है वो मर्द, वो औरत तो नहीं हो गया ना। अब उसका कुछ अरसे बाद ख्याल पैदा हुआ कि मैं अपनी सर्जरी करवा लूं, या मैं ऐसी दवाइयां लूं जिसकी वजह से मेरे हार्मोन्स जो हैं वो दूसरे वाले पैदा हो जाएं, औरतों वाले पैदा हो जाएं, जिसकी वजह से उसके आज़ा उनमें भी तब्दीली आ जाएगी। अब उसका कुछ अरसे बाद फिर ख्याल आया कि नहीं यार मुझे तो मर्द होना चाहिए। अब मर्द होने के लिए दोबारा वो उसी तरह के हार्मोन्स या उसी तरह की सर्जरी वगैरह वगैरह वो ये करवा लेगा। इसको नॉन बाइनरी, ऐसे अफराद को हम कहते हैं ट्रांसजेंडर।